Good morning, friends. Welcome to my 25th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding mode. I have told that mode is a positional average. Mode is the value variable having highest frequency. Mode is the value which is repeated maximum number of times in a series. So mode is the average of most. When we calculate most liked, most preferred, most used, most watched phenomenon, we generally go for the average, that average known as mode. You know that in TV serials, one thing is very famous, that is known as TRP. TRP means TRP is based upon most watched serial. Am I clear? So it's a average of mode. TRP is also average of mode. We have discussed mode. Then we have discussed how to compute mode in case of individual series, discrete series, and continuous series. We have discussed there are three important methods of mode. One is observation method, another is grouping method, another is empirical relationship method, out of which we have discussed observation method. We have completed observation method, and today we will solve some typical problem based on observation method for computation of mode. Okay, so before discussing the typical problem on computation of mode, let me first share my screen with you, then we will discuss different problems related to mode. 1 minute, please. So we are discussing regarding mode. 1 second. So once it is loaded, we will discuss some important problem related to mode. PowerPoint is not inserting. Okay, it's coming. So first we will discuss the first problem. Okay, the first problem is on the basis of unequal class interval. So first we will discuss what is unequal class interval, then we will solve a problem on unequal class interval, and that is related to mode. What is unequal class interval and how it is used in case of mode. Now please see what is unequal class interval. First see, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग्स. क्या दिया हुआ है? मोड निकालने को बोल रहा है. फॉलोइंग्स मार्क्स दिया हुआ है. मार्क्स को हम बोलते हैं वेरिएबल्स. वेरिएबल्स एक्स दिया हुआ है. और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या एफ दिया हुआ है. समझ में आ रहा है क्या? लेकिन वेरिएबल्स जो दिया हुआ है 0 to 10, तो गैप कितना है? तो व्हाट इज गैप? 10. सेकेंड में 10 से 20 गैप कितना? 10. नेक्स्ट 20 से 40 गैप कितना? 20. नेक्स्ट 40 से 50 गैप कितना? 10. नेक्स्ट 50 से 60 गैप कितना? 10. नेक्स्ट 60 से 80 गैप कितना? 20. नेक्स्ट 80 से 120 गैप कितना? 40. इस तरह का गैप है. तो these gaps are unequal. Very important. When we calculate mode, the gaps must be equal. इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा. तो पहले लिखेंगे नोट. तो फर्स्ट राइट डाउन नोट. इन केस ऑफ unequal class interval, mode cannot be
directly found out. We have to make the series equal. इक्वल मतलब इक्वल गैप वाला बनाएंगे तो जाकर हम क्या कर सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन इक्वल सीरीज का मोड नहीं निकाल सकते हैं, बाकी सारा एवरेज मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, डिसाइल निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल निकाल सकते हैं, परसेंटाइल निकाल सकते हैं, लेकिन मोड ऑन इक्वल सीरीज का नहीं निकल सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब ऑन इक्वल सीरीज देगा हमको मोड ऐसे डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते हैं। हमको पहले ऑन इक्वल सीरीज को क्या करना पड़ेगा, इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्वल गैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा देखिए इक्वल गैप में कैसे, सबको 10 करने से हो जाएगा, या सब में गैप 20-20 कर लो हो जाएगा। तो सपोज 20-20 का हम सोचते हैं गैप करेंगे, 20-20 का गैप करेंगे मतलब ये दोनों गैप को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 20। देखिए ये दोनों को मैं अगर मिला दूंगा तो गैप कितना हो जाएगा 20। बाकी ये तो 20 का है और ये दोनों को मिला दूंगा 10-10 का गैप हो जाएगा 20, और ये तो 20 का है, और ये 40 को 2 पार्ट कर दूंगा, एक गैप लूंगा 20 और एक गैप लूंगा 20, तो सब में गैप कितना हो जाएगा 20-20। अगर हम गैप को एक जैसा कर ले तो क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल्स इक्वल हो जाएगा। ऑन इक्वल सीरीज को पहले इक्वल करेंगे फिर जाकर मोड निकालेंगे। तो अभी क्या करेंगे, फिर रिवाइज्ड इस सीरीज को रिवाइज करेंगे, एक्स एफ। तो व्हाट इज फर्स्ट ये दोनों को मिला देंगे, समझ में आ रहा है, 10-10-20 हो जाएगा, 0 to 10, 10 to 20। 0 to 10 में कितना है 6 है, 10 to 20 में 9 है, 6 और 9 मिल गया, तो 0 to 20 में कितना हो जाएंगे 15। समझ में आ रहा है क्या, तो फर्स्ट हो गया 0 to 20 15। बेटा 15 कहां से आया, 0 to 10 में 6 है, 10 to 20 में 9 है, ये दोनों को मिल गए, मिलने के बाद कितना हो गया 15। तो फर्स्ट ये चला गया, ये चला गया। नेक्स्ट 20 से 40, तो 20 से 40 गैप भी 20 रहता है, ठीक है, 20 से 40 गैप कितना है, 20 से 40 में 12। नेक्स्ट 20 से 40 चला गया, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट 40 से 50 तो नहीं चाहिए, गैप 10 हो जाएगा। 50 से 60 ये दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 से 50 मिलेगा तो ये दोनों का फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा, तो हो गया 40 से 60 फ्रीक्वेंसी मिलाओ, ये दोनों का फ्रीक्वेंसी 40 से 50 वाला का मिलेगा, 50 से 60 वाला का मिलेगा। तो 40 से 50 वाला का 50 से 60 वाला का मिलाओ कितना होता है, तो ये 25 और ये 20 कितना हो गया 45। नेक्स्ट 60 to 80 ये तो दे दिया है, ये दोनों गया 60 to 80, हाँ ये इजीली निकल सकता है 60 to 80। कितना दिया हुआ है 60 to 80 17। अभी क्या दिया हुआ है 80 से 120। मेरे 80 से 120 तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको 2 पार्ट कर देंगे। क्या क्या पार्ट हो जाएगा, 80 से 101 हो जाएगा, 100 से 120 एक हो जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी 16 है इसको 2 पार्ट कर देंगे, 8-8 का हो जाएगा 16, तो इसमें हो जाएगा 8 और इसमें हो जाएगा 8। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा 80 से 100, कितना लेंगे 8 लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 100 से 120, कितना लेंगे 8 लेंगे। बेटा क्या किए, जो सीरीज था ऑन इक्वल था, वो ऑन इक्वल सीरीज का मोड डायरेक्टली नहीं निकल सकता है। ऑन इक्वल सीरीज को पहले
इक्वल गैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्वल गैप 10-10 का भी ले सकते हैं, 20-20 का भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर 10-10 का लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं गैप को कितना किया, 20-20 के गैप में कन्वर्ट कर दिया। 20-20 के गैप में कन्वर्ट करने के बाद अभी मेरा जो रिवाइज्ड सीरीज है ये आ गया। अगर रिवाइज सीरीज ये आ गया, अभी मैं मोड इसको देखकर निकालूंगा। मेरा यही सीरीज है, तो रिवाइज्ड सीरीज ये है। क्वेश्चन से ये वाला सीरीज से मेरे को इसको निकालना था, मैं निकाल दिया। एक बार निकल गया, फिर मेरे को मोड निकालना है। ये जो नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन से मोड निकालूंगा। तो ठीक है, तो देखते हैं कैसे मोड होगा। ठीक है बेटा, व्हाट इज एन? तो देखते हैं यहाँ पर एन कितना है, इन सबको मिला दो, एन आ जाएगा। एन कितना आ रहा है, मिला दो एन को, एन इन सबको मिलाने से एन आता है आपका 105। वैसे मोड में एन का उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो व्हाट इज द मोडल क्लास, देखते हैं व्हाट इज द मोडल क्लास। क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, ये 45 का है। इसका मोडल क्लास कौन सा है, 40 to 60। तो आ गया हमारा मोडल क्लास। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, देयरफॉर मोडल क्लास इज इक्वल टू कितना, मोडल क्लास इज इक्वल टू 40 to 60। आपका मोडल क्लास आ गया 40 से 60। एक बार मोडल क्लास आ गया, फिर मेरे को मोड निकालना है। मोड निकालने के तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को देखेंगे। अभी मोडल क्लास हो गया, तो ये जो 45 है इसको बोलते हैं F1, पढ़ाया था। तो इससे ऊपर वाला सीरीज को बोलते हैं F0, उससे नीचे वाला सीरीज का F को बोलते हैं F2। तो सब मिल गया, F0 मिल गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया। अभी हमको चाहिए मोड। मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। ये फॉर्मूला है मोड का। तो अभी हमको दो चीज निकालेंगे, डेल्टा 1 क्या है, फिर डेल्टा 2 क्या है, फिर आई क्या है, ये सब निकालेंगे, ये वैल्यू डाल देंगे। तो पहले निकालते हैं डेल्टा 1। व्हाट इज डेल्टा 1? मैं बताता, डेल्टा 1 इज द गैप बिटवीन F1 एंड F0। F1 और F0 के बीच में गैप कितना है बेटा, F1 है 45, F0 है कितना 12। 45 और 12 के बीच में गैप जितना है उतना, 45 और 12 के बीच में गैप कितना आ रहा है, 45 और 12 के बीच में आप गैप देखेंगे तो कितना आ गया 33। फिर डेल्टा 2, मैं बताया था डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 2 इज द गैप बिटवीन F1 एंड F2। F1 कितना है, F1 45 है, F2 कितना है, F2 17 है। 45 और 17 के बीच में गैप, 45 और 17 के बीच में गैप आता है 28। डेल्टा 1 निकल गया, डेल्टा 2 निकल गया। नेक्स्ट निकालेंगे आई। आई का मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। व्हाट इज क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का क्लास इंटरवल। तो कितना है क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास है 40 से 60, इसके बीच में इंटरवल, इंटरवल मतलब गैप, 40 से 60 के बीच में गैप कितना है, 40 से 60 के बीच में 20। तो व्हाट इज एल, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 40 है। तो अभी ये सारा फिगर यहाँ पर डाल देंगे और वैल्यू निकल जाएगा। मोड इजिकल टू एल, एल है 40 प्लस, फिगर डालो डेल्टा 1, डेल्टा 1 कितना है डालते हैं, डेल्टा 1 यहाँ पर निकाले हैं 33, डेल्टा 1 का वैल्यू आ गया 33, डेल्टा 2 का वैल्यू है 28, तो ये हो गया 33। तो 33 डिवाइड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2,
दैट इज इक्वल टू 33 प्लस डेल्टा 2 कितना है 28 इंटू आई, आई का मतलब कितना है, आई है क्लास इंटरवल है 20। अभी इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आता है। तो दैट इज इक्वल टू, देखते हैं कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 40 प्लस कितना हो रहा है, तो ये हो गया 33 डिवाइड बाई 33 प्लस 28 61 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 40 प्लस ये हो गया 33 इंटू 26 60 डिवाइड बाई 61 दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 660 बाई 61, 660 बाई 61 आपका आता है 10.82। तो एक्चुअली मोड कितना आएगा 40 प्लस 10.82 दैट इज इक्वल टू 50.82। तो आपका मोड का वैल्यू आ गया 50.82 आंसर। तो क्या किए, पहले एक ऑन इक्वल क्लास इंटरवल दिया था, ये ऑन इक्वल क्लास इंटरवल का मोड डायरेक्टली नहीं निकल सकता है, इसीलिए ऑन इक्वल क्लास इंटरवल को हम क्या कर दिए, इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिए। कितना इक्वल करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 10-10 का इक्वल कर सकते थे, 20-20 का इक्वल कर सकते थे, 30-30 का इक्वल कर सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 10-10 का करते ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लंबा हो जाता, इसीलिए हम इसको 20-20 का इक्वल कर दिए। 20-20 का इक्वल करके हम इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिए, फिर इसका मोड इजीली निकल गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अभी पहला क्वेश्चन ओवर हो गया, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ ऑन इक्वल क्लास इंटरवल ओवर। नेक्स्ट अभी करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। पहले प्रॉब्लम नंबर 2 को इंसर्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर देखेंगे। एक सेकेंड, हाँ प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 इज ऑन इंक्लूसिव सीरीज। व्हाट इज एन इंक्लूसिव सीरीज? एक इंक्लूसिव सीरीज क्या है पहले डिस्कस करेंगे, इंक्लूसिव सीरीज क्या है, फिर उसके ऊपर सॉल्व करेंगे एग्जांपल। ओके, ओके, नाउ प्लीज सी व्हाट इज एन इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज क्या है, देखिए ये कंप्यूट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स को हम बोलते हैं एक्स वैल्यू इज गिवन। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ इज गिवन, लेकिन 1 से 10 से 14, तो 14 तक है, फिर नेक्स्ट वाला सीरीज 15 में शुरू हो गया, तो देयर इज ए गैप। ये वाला खत्म हुआ, सेकेंड वाला सीरीज 19 में खत्म हुआ, नेक्स्ट वो शुरू हो गया 20 में, तो देयर इज ए गैप। तो यहाँ पर एक गैप है, तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, इस तरह से बीच बीच में एक एक छोड़ क्या है, गैप है। इसको पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कॉन्टिन्यूअस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैप बाई 2 फॉर्मूला डालकर, इस साइड में माइनस करेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में प्लस करेंगे, तो लिखेंगे इंक्लूसिव सीरीज। तो लिखेंगे इंक्लूसिव सीरीज, लिखेंगे while computing mode
the inclusive series will be first converted to exclusive series by applying gap by 2 formula. We have to deduct gap by 2 from left side and add gap by 2 in right side. लेफ्ट साइड में गैप बाई 2 क्या करेंगे, लेस करेंगे, और इस साइड में गैप बाई 2 प्लस करेंगे. तो देखेंगे हर केस में गैप कितने का है. अच्छा ये 14 है, 14 से फिर यहाँ पर शुरू हुआ 15, गैप है 1. ये 19 से 20 हुआ, गैप 1. यहाँ पर गैप हो गया 1 का, यहाँ पर गैप हो गया 1 का, यहाँ पर गैप हो गया 1 का. तो यहाँ पर गैप बाई 2 मतलब क्या है, एक एक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है. तो यहाँ पर गैप हो गया 1 1 का गैप है. तो गैप बाई 2 क्या होगा, तो लिखेंगे इन दी क्वेश्चन गैप इज इक्वल टू 1 कोमा. तो गैप बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 बाई 2. 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0.5. तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे 0.5, यहां पर 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 माइनस करेंगे 0.5, और राइट साइड में प्लस करेंगे 0.5. यहां पर प्लस करेंगे 0.5, यहां पर प्लस करेंगे 0.5, यहां पर पॉइंट प्लस करेंगे 0.5, यहां पर प्लस करेंगे 0.5, यहां पर प्लस करेंगे 0.5. इस हिसाब से पहले सीरीज को कॉन्टिन्यूअस बना देंगे, फिर उसका मोड निकालेंगे. तो देखते हैं कितना होता है. तो देखते हैं पहले क्या होता है. पहले सीरीज लिखिए x फिर f. फर्स्ट वाला 10 से 0.5 माइनस हुआ, 10 से 0.5 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 10 से 0.5 माइनस हुआ तो क्वेश्चन में आ गया ये 9.5. 2 कितना आ जाएगा, ये 14 है, 14 में 0.5 प्लस हुआ 14.5. एफ है 12. नेक्स्ट सेकेंड वाला कितना हो जाएगा, 9.5 to 14.5 गया. सेकेंड वाला हो जाएगा 15 से 0.5 माइनस होगा 14.5, तो यहाँ पर 0.5 प्लस होगा 19.5. एफ कितना 25. नेक्स्ट थर्ड वाला में 19.5 टू 29.5. एफ कितना, एफ 29 24.5. टू 24.5. एफ कितना, एफ है ये का, ये गया थर्ड वाला 28. नेक्स्ट 24.5 टू 29.5. ठीक है. एफ कितना 24.5 टू 29.5, ये गया था 42. नेक्स्ट होगा 30 से 0.5 माइनस होगा 29.5 टू, ये हो जाएगा कितना 34.5. एफ कितना सर, एफ हो जाएगा 20. ये गया 42 गया था, 20 गया. नेक्स्ट थर्ड वाला तो 34.5 टू, ये हो जाएगा 39.5. एफ कितना सर, एफ है 58. ठीक है. तो ये आ गया आपका सीरीज.
अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसका टोटल निकालना है n। इसको थोड़ा उठा देता हूं। n का वैल्यू मिल गया। व्हाट इज n? n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू, इन सबको ऐड कर दो, n का वैल्यू आ जाएगा, इन सबको ऐड करने से आपका आता है 185। मोड में n का उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी 185 आ गया। अभी हमको देखना है ऑब्जर्वेशन मेथड में कौन सा मोड है। आप देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लास्ट वाला चीज का है। तो व्हाट इज मोडल क्लास? मोडल क्लास इज 34.5 टू 39.5। तो लिखेंगे देयरफॉर मोडल क्लास इज इक्वल टू 34.5 टू 39.5। अभी देखेंगे जो मोडल क्लास है उसको बोलते हैं F1, उसके ऊपर वाले को बोलते हैं F0, उसके नीचे वाले को बोलते हैं F2। यहाँ पर तो F2 कुछ नहीं है, तो F2 का वैल्यू 0 है। F0 का वैल्यू कितना है? 20 है। F1 का वैल्यू कितना है? 58 है। ये सब मिल गया। अगर ये सब आपको मिल गया, नाउ यू कैन कैलकुलेट डेल्टा वन। डेल्टा वन का वैल्यू क्या है? F1 और F0 के बीच में गैप। F1 कितना है? 58। F0 कितना है? 20। इसके बीच में गैप है 38। कोई डाउट है क्या? इसके बीच में गैप है 38। अच्छा, डेल्टा टू कितना है? डेल्टा टू इज द गैप बिटवीन F1 एंड F2। F1 कितना है? F1 है 58। सर F2 तो क्वेश्चन में है ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो इसका गैप हो गया 58। am I क्लियर? नेक्स्ट सर एल कौन सा है? एल इज द लोअर लिमिट। तो एल इज द लोअर लिमिट। एल लोअर लिमिट किसका है? मॉडल क्लास का। मॉडल क्लास कौन सा है? 34.5 टू 39.5, दैट इज इक्वल टू 34.5। एंड आई क्या है? आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किसका? मॉडल क्लास का। कितना है? 34.5 और 39.5, ये है मॉडल क्लास। इसके बीच में गैप कितना है? 5। सर सब कुछ कैलकुलेशन हो गया। डेल्टा वन निकल गया, डेल्टा टू निकल गया, एल निकल गया, आई निकल गया। अभी हम मोड निकालेंगे, तो डायरेक्ट इस साइड में मोड निकालते हैं। मोड इजिकल टू फॉर्मूला डालेंगे, मोड इजिकल टू एल प्लस डेल्टा वन डिवाइड बाई डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, एल का मतलब कितना है? एल मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है? देखिए लोअर लिमिट है 34.5 प्लस डेल्टा वन। डेल्टा वन का वैल्यू तो अभी निकाले हैं, डेल्टा वन का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं। कितना है डेल्टा वन? डेल्टा वन है सर 38 प्लस 38 लिखेंगे, प्लस 38 डिवाइड बाई ये डेल्टा टू। डेल्टा टू का वैल्यू कितना है? डेल्टा टू का वैल्यू सर यहाँ पर है, डेल्टा टू का वैल्यू ये है, डेल्टा टू का वैल्यू 58। तो दैट डिवाइड बाई 38 प्लस 58, दैट इज इक्वल टू लिखेंगे डिवाइड बाई 38 प्लस 58 इंटू आई। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल देखो कितना है? 5 है, इंटू 5, दैट इज इक्वल टू कितना आता है देखते हैं। दैट इज इक्वल टू 34.5 प्लस ये हो जाएगा 38 बाई 96 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 34.5 प्लस ये आ जाएगा 38 इंटू 5 हो गया 190 बाई 96, दैट इज इक्वल टू 34.5 प्लस 190 बाई 96। 190 बाई 96 आता है 1.98। इसको मिला दो, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 36.48। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोड। ये आपका आंसर। तो दिस इज आवर आंसर।
ठीक है, तो हम क्या किए, ये जो पहले एक सीरीज दिया था वो कौन सा सीरीज था, इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज से उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिए। एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद जैसे हम मोड निकालते हैं उसी तरह से नॉर्मल वे में मोड निकाल दिए। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज में कैसे मोड निकालते हैं, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम अभी हम कर चुके हैं। अभी हम थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे जिसमें है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम। ओके, तो देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पढ़ने से पहले मैं प्रॉब्लम को थोड़ा इंसर्ट करता हूं। हाँ, तो क्या दिया हुआ है, ये एक प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम है। व्हाट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अभी देखेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर एक दो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है लेकिन डाटा में एक दो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। उस तरह का फ्रीक्वेंसी को क्वेश्चन को बोलते हैं मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर देखेंगे कैसे बनता है। क्या दिया हुआ है, इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 80, व्हाट इज टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज एन। क्वेश्चन में हमको एन दे दिया है, एन कितना है 80, ठीक है, एन का वैल्यू है 80 एंड मोड दे दिया है, मोड इज इक्वल टू 54। तो ये सब दे दिया है और ये सीरीज दिया हुआ है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और ये वाला चीज दिया हुआ है। हमको पूछता है ये एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और ये एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सपोज ये वाला मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स है, क्या ले लिए, इसका वैल्यू कितना ले लिए, एक्स। तो देखते हैं बाकी वाला दूसरे वाला का वैल्यू कितना होगा। हमको पता है ये सब मिलकर कितना है 80 है, तो लिखेंगे लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 to 50 इज इक्वल टू एक्स। 40 से 50 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, एक्स हुआ, फर्स्ट पॉइंट गया। Then what is the missing frequency of 60 to 70? Then the missing frequency of 60 to 70 will be, हमको पता है ये टोटल 80 है, 80 माइनस ये जो सब दे दिया है वो सबको माइनस करेंगे। फर्स्ट वाला का है 15, दूसरे वाला का 10, तीसरे वाला का x, चौथे वाला का कितना है 22, नेक्स्ट तो 6, नेक्स्ट 8, ये सब मिलकर 80 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60 to 70 का वैल्यू कितना है। 60 to 70 का वैल्यू अभी कितना आया, दैट इज इक्वल टू 80 माइनस कितना आता है, इन सबको मिलाओ कितना आता है, 15 10 25, 25 22 47, 15 10 25, 25 22 47, 53, 61, तो ये आ गया 61 प्लस एक्स, तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 61 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 80 माइनस 61 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 61 19 माइनस एक्स। हमको मिल गया दो दो फ्रीक्वेंसी, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक से और दूसरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी 19 माइनस एक से। तो अभी यहां पर सीरीज में लिख लेते हैं, ये है x और ये है 19 माइनस एक्स।
हमको 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल गया, लेकिन x का वैल्यू तो ढूंढना पड़ेगा। x का वैल्यू अगर ढूंढ लेंगे तो हो जाएगा। अभी हम सीरीज को और एक बार सजाकर लिखते हैं, फिर देखते हैं x का वैल्यू कैसे निकलता है। तो सीरीज को सजाकर लिखते हैं। ओके, क्या सीरीज दिया हुआ है देखते हैं। पहले दिया हुआ है x वैल्यू, मार्क्स, मार्क्स को बोलेंगे x। फिर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलेंगे f। फर्स्ट डाटा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट डाटा सर दिया हुआ है 20 से 30 के बीच में कितना है, 15। ठीक है। फिर सेकंड दिया हुआ है कितना, 30 से 40, उसका f कितना दिया हुआ है सर, 10। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है 40 से 50, उसका कितना है सर, x लिए। ठीक है। नेक्स्ट 50 से 60, कितना है, 22 है। ठीक है। नेक्स्ट है कितना, 60 से 70, उसका कितना हुआ सर, 19 माइनस x। अच्छा, नेक्स्ट लिए कितना, 70 से 80, उसका कितना है, उसका है 6। इसको थोड़ा उठाना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट वाला कितना आया, 80 से 90। ठीक है। और उसका कितना है, 80 से 90 का 8। और ये टोटल एन कितना आता है, टोटल एन आता है सर 80। अभी ये क्वेश्चन को ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्वेश्चन में दे दिया है मोड, दे दिया है क्वेश्चन में मोड इजिकल टू 54, क्वेश्चन में दे दिया है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोड दे दिया है 54। अगर मोड 54 है तो 54 कहां पर आता है सर, 54 50 से 60 के बीच में आता है। सो दिस इज आवर मोडल क्लास। तो मेरे को मिल गया मोडल क्लास कितना है, तो लिखेंगे देयरफॉर मोडल क्लास इज इक्वल टू 50 to 60। अगर ये मोडल क्लास है तो ये जो मोडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं f1, और उससे ऊपर वाले को बोलते हैं f0, उससे नीचे वाले को बोलते हैं f2। हमें क्लियर। तो सारा चीज अभी निकाल लेंगे। क्या क्या निकाल लेंगे, पहले निकालते हैं। सो डेल्टा 1 कितना होगा, मैं बताया था डेल्टा 1 इज द गैप बिटवीन f1 एंड f0। f1 और f0 के गैप, f1 है 22 और f0 है x, तो 22 माइनस x। डेल्टा 2 कितना होगा, डेल्टा 2 इज द गैप बिटवीन f1 एंड f2। f1 कितना है 22, f2 कितना है 19 माइनस x, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 22 माइनस 19 माइनस इंटू माइनस प्लस x, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 प्लस x। डेल्टा 2 का वैल्यू कितना आ गया, 3 प्लस x या x प्लस 3, कुछ भी बोल सकते हैं। डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 2 आ गया, और इसको भी हम बोल सकते हैं x प्लस 3। ठीक है। तो डेल्टा 1 का वैल्यू आ गया आपका कितना, 22 माइनस x, और डेल्टा 2 का वैल्यू आ गया x प्लस 3। अच्छा, व्हाट इज एल, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। कितना है मॉडल क्लास का सर, 50 है, क्योंकि 50 to 60 है। ओके। नेक्स्ट आई, आई इज द क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। व्हाट इज द क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का क्लास में कितना गैप है सर, 50 से 60 के अंदर 10 गैप है। हो गया। तो अभी मोड का फॉर्मूला डालेंगे और इक्वेशन आएगा, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अभी मोड का फॉर्मूला डालते हैं। तो देखते हैं मोड का फॉर्मूला क्या है।
हमको क्वेश्चन में दे दिया है मोड, मोड का फॉर्मूला डालते हैं। व्हाट इज मोड? मोड का फॉर्मूला क्या बोलता है, मोड कैसे निकलता है देखेंगे। मोड इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा वन डिवाइड बाई डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। Am I clear? Now what is L? L कितना है? और मोड तो क्वेश्चन में दे दिया है, मोड दे दिया है 54 इजिकल टू एल। एल कितना है? एल क्वेश्चन में दे दिया है, एल निकल गया है 50। 50 प्लस डेल्टा वन, डेल्टा वन कितना है? डेल्टा वन तो क्वेश्चन में निकल गया है, कितना है? 22 माइनस एक्स डिवाइड बाई डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन निकालेंगे, डेल्टा वन कितना है? 22 माइनस एक्स प्लस डेल्टा टू। डेल्टा टू कितना है? डेल्टा टू तो अभी निकाले हैं, डेल्टा टू एक्स प्लस 3 इंटू आई। आई कितना है? आई 10। समझ में आ रहा है? इस तरह का इक्वेशन आ रहा है तो देखते हैं। अच्छा, ये जो 50 अगर इस साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 54 माइनस 50 इजिकल टू कितना आएगा? ये 22 माइनस एक्स डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 22 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 10। अच्छा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल हो जाएगा तो क्या बचा देखते हैं इस साइड में। और 4 इजिकल टू कितना आएगा? 22 माइनस एक्स डिवाइड बाई 22 प्लस 3 तो हो गया 25 इंटू 10। ठीक है, तो अभी इसको काट लो। कितने में काट लो? 10 में, 5 में काट लो तो 2 हो गया, 5 में काट लो तो 5 हो गया। तो कितना हो गया? 2 इंटू, और मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। और पहले इस साइड को लिख लेता हूं। 2 होल इंटू 22 माइनस एक्स बाई 5 इजिकल टू 4। और 2 इंटू 22 कितना आ गया? 44 माइनस 2 इंटू एक्स 2x इजिकल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इजिकल टू 20। और ये 2x इस साइड ले आओ, ये 20 को इस साइड ले आओ। 44 माइनस 20 इजिकल टू 2x। और 2x इजिकल टू 44 माइनस 20 कितना आ गया? 24। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? और x इजिकल टू 24 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो इक्वेशन सॉल्व कर दिए, x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 12 आ गया। तो x मतलब ये जो 40 से 50 का क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f0 का वैल्यू आ गया 12। अच्छा, और एक का वैल्यू कितना है? 19 माइनस 1। तो ये 19 माइनस 1 किसका है? 60 से 70 का फ्रीक्वेंसी, जिसको हम f2 बोलते हैं। f2 का वैल्यू कितना आएगा? f2 का वैल्यू हमको पता है 19 माइनस 1, 19 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 19 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 7। तो दोनों मिस